देखिए, आज की कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा वर्च्यू है सिंप्लिसिटी। इतनी आसानी से आप अचीव नहीं कर सकते। एक सबसे अच्छे आइडिया की भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सिंप्लिसिटी, और अच्छे आइडियाबाज की भी यही रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही अपनी सिंप्लिसिटी से एक सिंपल सा आइडिया अपने दिमाग में सिंपली उतारने आ रहे हैं हमारे अगले दो आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिंदु और अक्षय का। अक्षय और बिंदु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू। टाइटन्स में बता दूं कि ये आइडिया स्टेज पे है, उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी कीजिएगा, और ये अपनी पिच कन्नड़ा में देंगे। गुड लक। ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಟನ್ಸ್, ನಾನು ಬಿಂದು. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಟೈಟನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇದು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗೋರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಆಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಟಿಕೆ ಬಡಲ್. ಬಡಲ್ ಬಂದು ಮರದ ರಂಬೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೀ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಗುರಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಟನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಾವೇನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿರೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಬಡಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕತೆಗಳನ್ನ, ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರದ್ದೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದೀಗ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಆಗಲಿ ಹಾಡನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. What led you to start this? बचपन से कर्नाटक में ही पला बड़ा हूँ, तो चन्नपटना का बारे में मैं जानता था. जब मैंने चन्नपटना को विजिट किया तब यहाँ का लोग, यहाँ का एक कला, उसके ऊपर मुझे एक प्यार हो गया. क्योंकि यहाँ का लोग है कितना अच्छे से तरह से ये आर्ट जानते हैं. यहाँ के लोग का वो कारीगरी का जो इंटेंसनेस है उसे देख के मैं तो बहुत इंस्पायर हो गया. देख के ही मैं सोचा कि ये आर्ट तो दुनिया भर में होगा, ये लोग तो बहुत कमाई कर रहे होंगे, ऐसे मैंने सोचा. लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला और इनसे बात किया तब मैंने समझा कि ये आर्ट तो स्लोली डाई हो रहा है और इनका जो इनकम भी स्लोली डेली वो डिक्रीज हो रहा है. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ. ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ.
इतना एक अद्भुत आर्ट डाई होते हुए देख के मुझे बहुत दुख लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस ओल्ड ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ के इसको हम वर्ल्ड में लेके जा सके। तो आपके ये टॉयज कैसे काम करते हैं, क्या है वो कुछ हमें दिखा सकते हैं आप? Like to show you a demo of it. प्लीज दिखाइए, डेमो दिखाइए। ये जो टॉय है वो सस्टेनेबल वुड मटेरियल से बना है और वही हमारा क्राफ्टमैनशिप से ही ये बना है और ये नेचुरल कलर भी है। ये हम एक बेसिक सा प्रोटोटाइप किया है। ये एक लोरी सिंगिंग टॉय है। जब हम इसे थोड़ा मूवमेंट देते हैं निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोप लागला। आप टच भी कर सकते हो ऐसा। सबसे पहले तो अक्षय जी और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा थैंक यू। Thank you. कि आपने जिस लैंग्वेज में बोला, क्या कन्नड़ा बड़ी स्वीट लैंग्वेज थी, सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। थैंक यू। इट वाज वेरी वेल डन। और सचमुच में स्वीट लैंग्वेज है। सर इस बात पे ऑडियंस को भी 100% मजा आया होगा। मैं पहले मार्केट डिमांड ले लेता हूं। यस यस यस। तो आप अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इन्होंने जो इनोवेशन किया है उसकी मार्केट डिमांड कितनी है। %81 लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। ऐसा कोई टॉय होगा तो मजा आएगा। आई ओपन द फ्लोर फॉर यू। आप जो भी बिजनेस की बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, इन्होंने प्रोटोटाइप तैयार किया है, आगे कैसे ले जाना है वो आप लोग तय कीजिए। सो अक्षय पहले तो एंड बिंदु, आई थिंक आप जो करना चाहते हैं कि आपके कल्चरल वैल्यूज बच्चों तक कैसे लेके जाए, आई थिंक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। आपने एक चीज़ बोला था कि ये AI एनेबल्ड है एंड किसी का भी वॉइस, एंड करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग हूँ, तो किसी का भी वॉइस कर सकते हैं। तो अगर मेरे को ये सारे सॉन्ग्स लेट्स से मेरी मम्मी की आवाज़ में करने हैं तो वो कैसे करेंगे? We are trying to create an app where if we write a story, then using generative AI, it will convert that voice into her Dadi Ma's voice, provided it should have some samples. हमारे घर में ये योटो, टोनीज, सुपर बॉडी जैसे प्रोडक्ट्स है जहाँ ये फंक्शनैलिटी होती है। तो ये मार्केट में जहाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉयज है जो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, 2000-3000 रुपए में ऐसे टॉयज मिलते भी है, वो मार्केट में आप आपके टॉय को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं और क्या प्राइस पे प्लेस करना चाहते हैं? Okay, so first thing is that we are promoting sustainability by using wood. And this is one of the options we have explored so far. So currently the pricing of these are somewhere around 900 and our manufacturing cost is somewhere around 700. And the AI integrated with the app version that we are talking about, that's under R&D. And if it comes to the market within like 3 months, it will be somewhere around 1,500 plus subscription fee, which is going to be minimal. Because these are the toys that our older generation have already played with, and that's something they would like to give to their, kids or grandkids so that they can share a connection. So we are not just selling a toy, we are selling an emotion. Sure. And on that basis, we want to connect everyone. संदेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आइडिया पे? मेरा एक डिफरेंट एंगल है इस पे। मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर आप इसको एज अ गिफ्टिंग आइटम या सेट्स ऑफ गिफ्टिंग आइटम का राउट करना चाहें तो अपने यहाँ बहुत सीरीज ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, या फॉर एग्जांपल सुंदरकांड, हनुमान चालीसा है या रामायण पाठ है। अगर आप उसको रिलीजियस एंगल दे दें इन टॉयज को तो शायद ये एक वर्केबल बिजनेस मॉडल बन सकता है, क्योंकि उस रिलीजियस प्रोडक्ट की बहुत नीड है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा आपके बेनिफिट के लिए, फ्रॉम एक्सपीरियंस, Yes. मुझे नहीं लगता कि आपको ऐप बनानी चाहिए, Okay. बिकॉज नोबडी विल गिव यू रियल एस्टेट ऑन देयर फोन। अगर आप बनाएंगे भी ऐप तो आपको रियल एस्टेट नहीं मिलेगा। प्रोफेसर रिचा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? एक और एस्पेक्ट में जो बोलूंगी आपको कि आपने इकोजेन रखा है कंपनी का नाम, और मेरे ख्याल से ब्रांडिंग आप बदल कर रहे हैं, सो दैट्स गुड। बट अगर आप वो रिलीजियस एंगल में जाते हैं तो थोड़ा सा नया नाम एक लाने की सोचिए।
आईडीए में आई वुड से कि सर्टेनली एक पोटेंशियल है और आप एक बहुत अर्ली स्टेज पर आए हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए आप इस पे कैसे वर्क करते हैं, सब चीज़ों को कैसे मिलाते हैं। आप ये 20 लाख किस लिए लेना चाहती थी? The 20 lakhs that we asked for was for within 1 month, we would pilot these products into market that's there in all different designs. And currently the app idea that we told, it's under R&D. So within 3 months, we would be able to pilot that also into market. So after you have revisited, this is too early to give you any offer or discuss anything. Maybe आप उसको work करके आप या next season में या 2 हफ्ते बाद you reach us outside आइडियाबाज। बट आइडियाबाज के मंच को मैं थैंक्स करता हूँ कि ऐसे इनोवेटिव चीज़ें छोटे छोटे गांव से यहाँ आ रही है, and I really respect what you are doing. We are totally open to work on something where you can integrate that spiritual aspect. आइडियाबाज में आने का मकसद सिर्फ फंडिंग लेने का ही नहीं, मैं तो एक मेंटर भी ढूंढ रहा था सर। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसिडर दिस एंड जॉइन हैंड्स विद अस। अगर आप इस स्टेज पे अगर वो रिलीजियस एंगल प्ले करने को चाहते हैं तो आई स्टार्ट विद 10 लाख फंडिंग, लेट्स सी वेयर इट गोस, और आगे अपन बात कर सकते हैं। बाकी कोई टाइटन कुछ और ऐड करना चाहेगा? आपके स्टेट के और आपके एरिया के कल्चर को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए संदेश जी आई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस। आज मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा, बट आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट दैट यू टेक फॉरवर्ड कर्नाटका's legacy. Thank you so much, sir. For all the guidance, I'm certainly there. मतलब इसको मार्केटिंग में क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे करना है, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक ये जो बिजनेस मॉडल है आज, ये मुझे वायबल नहीं लगता है, तो इसको पिवट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आपको बहुत ही दिग्गज आदमी से गाइडेंस मिलेगा जो आपको आई थिंक बहुत काम आएगा। आई थिंक आपको सबसे पहले एक संदेशी के गाइडेंस के अंडर छोटा सा एक बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, एंड आई डोंट थिंक दैट शुड टेक मच टाइम, एफर्ट और मनी, बिकॉज आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर वो गाइडेंस आगे जाती है तो पोटेंशियली वी आर ऑल अवेलेबल टू गिव यू मोर गाइडेंस और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पवन जी, मैं आपको भी बता दूं और आप दोनों को भी बता दूं कि आज तक जिस किसी को भी संदेश जी ने मेंटरशिप या इन्वेस्टमेंट दिया है, वो अलग ट्रेजेक्टरी पे ही चलते हैं, उनका पेस ही बदल जाता है। क्योंकि संदेश जी सिर्फ पैसा नहीं लगाते, वो पूरा इंटरेस्ट लगा के खुद इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, और वो अगले दिन वो शायद कल आपके ऑफिस पहुंच जाएंगे और आपके साथ काम मतलब आपको भगाएंगे भी उतना ही। तो वो आप सोच लीजिए, अगर हाथ मिलाना चाहते हैं तो अभी संदेश जी ने हाँ कह दिया, तो फिर हाथ मिलाया जाए। जरूर, आइए। तो टाइटन्स, हमारे इस मंच पर आइडियाबाज आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, और आज एमएसएमई सेक्टर से भी सतीश शेट्टी जी जुड़ रहे हैं, जो कि तलोजा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके एसोसिएशन में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे पास 1623 इंडस्ट्रीज है और उसमें सब टाइप के सेक्टर्स है, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, इंटरमीडिएट्स, सी फूड्स, ये सब वेरियस सेक्टर्स है उसमें। आइडियाबाज के मंच पर हम जिस प्रकार के आइडियाज को लेकर आते हैं, उससे एमएसएमई सेक्टर को क्या फायदा हो सकता है? ऑल न्यू आइडियाज विच वी आर प्लानिंग टू, हम लोग का भी नया एक्सपेंशन इंडस्ट्रीज का 750 एकर्स में हो रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज वेयर इट कैन बी बॉट इन एंड प्रोडक्शन से लेके सब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तलोजा में करने का हम लोग का प्लानिंग है। वी आर लुकिंग फॉर अ लार्जर सेटअप इन तलोजा एमआईडीसी। थैंक यू सतीश जी, हम आशा करते हैं कि आप जो सोच लेकर आए हैं उस सोच में फायदा मिले, वैसे आइडियाज यहाँ से जरूर मिलेंगे आपको। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच।